afternoon. Today is Sunday, and I have selected few more questions from a Riddle book, and I have especially chose these 5 questions because these 5 questions are not only important for JEE Advanced point of view, but are also very important for JEE Mains point of view because the initial 3 questions are covering a very important aspect of the chapter, and that is Carnot engine, efficiency of a Carnot engine. So we are starting with the first question. In which case will the efficiency of a Carnot cycle be higher when the hot body temperature is increased by delta T or the cold body temperature is decreased by the same magnitude? So let's consider the situation when hot body temperature is increased. So first of all, let me write down the formula of efficiency. Efficiency is 1 minus T low divided by T high, and you have two options. Option 1, you are changing the efficiency by changing the low temperature. So if you are differentiating it with respect to low temperature, this will be dTL divided by TH, and it is given that you have two options. Either you decrease the temperature of sink by same amount, or you increase the temperature of source by same amount. So if dt low is minus delta T because you are decreasing, the change of efficiency will be delta T divided by T high. At the same time, this is situation 1 when low temperature is reduced. Now considering this second situation, and this time I am changing the high temperature. So d neta 2 is equal to 0 minus T low divided by minus of T high square into dt high. It is given that change is same, so dt high is also equal to delta T. So when I'll replace delta T here, I'll get TL divided by TH into delta T divided by TH. Delta T by TH is actually d neta 1. So TL divided by TH d neta 1. इनफैक्ट आपको यहाँ से एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो चेंज इन एफिशिएंसी का रेशो है वो उनके टेम्परेचर के रेशो में ही आता है. ज़रूरत पड़ने पर आप इस बात का फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया. दिस नंबर इज लेस देन 1. So if this number is less than 1, we can say that d neta 2 is less than d neta 1. So it is more beneficial to decrease the temperature of sink. If you decrease the temperature of sink, it will be better. आपकी एफिशिएंसी में जो इंक्रीमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा. 2.113 क्वेश्चन था. मैं नंबरिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन पे. 2.113. ओके, तो वो जो चेंज है ना वो ज़्यादा बेटर होगा. नाउ कमिंग टू 2.114. हाइड्रोजन इज यूज्ड इन अ कार्नो इंजन as a working substance. Find the efficiencies of the cycle if the result of adiabatic expansion the gas volume increases by 2 times. आपने एक केस में क्या किया, गैस के वॉल्यूम को दुगना कर दिया. एक केस में क्या कर रहे हो, प्रेशर को आधा कर रहे हो. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक बार प्रेशर को दुगना करके देखते हैं. सही है ना, प्रेशर दुगना ही किया कि आधा किया, वॉल्यूम को दुगना करते हैं. सो हाइड्रोजन इज यूज्ड, मतलब वो हमें इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको डायटोमिक गैस की तरह यूज़ कर सकते हो. 2.114 इज़ द क्वेश्चन. सो दिस इज़ अ कार्नो इंजन, और कार्नो इंजन का मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ. कार्नो साइकिल कैसा दिखता है. यस, मेरे पास यहाँ पर एक P वर्सेस V, या एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग P वर्सेस V के बजाय S वर्सेस T ग्राफ बनाते हैं. अच्छा होता है वो, इजीली समझ में आता है. तो इस वाले एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ S, इस वाले पे प्लॉट कर रहा हूँ S, और उस वाले पे प्लॉट कर रहा हूँ T. ठीक है, तो कार्नो साइकिल ऐसा होता है.
फर्स्ट आइसोथर्मल, ओके, देन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वो होता है जिसमें इंट्रोमी में कोई चेंज नहीं आता, ओके। और लास्ट होता है आपका वापस, तीसरा होता है वापस आइसोथर्मल और लास्ट होता है वापस एडियाबैटिक। तो ये आपका पूरा कार्नो साइकिल है। एंड इट इज गिवन दैट इन केस ऑफ, आ गया क्वेश्चन ये रहा, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। देखो बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप अप्लाई कर सकते हो इक्वेशन टी एच वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी लो 2 टाइम्स वी टू द पावर गामा माइनस 1। ऐसा बोल रखा है, वॉल्यूम डबल हो गया। वी टू द पावर गामा माइनस 1 से वी टू द पावर गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, एंड टी हाई विल बी इक्वल टू टी लो इंटू 2 टू द पावर गामा माइनस 1। इसका गामा कितना होता है वैसे डायटोमिक गैस का? गामा होता है 5/3। सो यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे 5/3 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों टी लो इंटू 2 टू द पावर 5/3, right? So if you want to write down efficiency in this situation, the situation which is given to you, the efficiency will be equal to 1 minus 1 upon 2 to the power 5/3। इरोडो में इसका वैल्यू भी दे रखा है, मैंने वो वैल्यू लिखी भी है, बता देता हूँ। आई थिंक इसमें जो आंसर आता है 2.115, ये रहा 2.115 में जो आंसर आता है, डोंट टेल द वैल्यू, बट आप चेक कर सकते हैं इसमें जो आंसर आता है। आई थिंक परसेंट आता है, 25% आता है, 50% आता है, डोंट रिमेंबर द वैल्यू, 2.114। जब तक एग्जामिनर हमको 2 की पावर 5/3 नहीं देगा, एग्ज़ाम में तो उसको निकालना मुश्किल काम है, लेकिन एग्जामिनर के हाथों में सब कुछ होता है, वो कभी भी आपको दे सकते हैं इसकी वैल्यू। 2.114, 2.114, इसका आंसर यस, मैं आपको थोड़ा आइडिया तो था, 0.25 है। उसके अगले वाले का आंसर 0.18 है। तो इसका आंसर है बच्चों 0.25। अब ये बात तो सत्य है कि हम लोगों से अभी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ये। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इस फैक्टर की वैल्यू हमको नहीं पता। शक्ल देख के लग रहा है कि इस फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए 4/3, क्योंकि 4/3 होगी तो ये 3/4 बनेगा और अपना आंसर आएगा फिर 0.25। सो एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस इज ए पार्ट, इसकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाती है बच्चों 25%। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि प्रेशर आधा हो गया। तो हम लोग को इस बार टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करना होगा। टी हाई इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी लो, या यूँ कह सकते हो टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है टी वी टू द पावर गामा माइनस 1, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है। कई बच्चों को तो याद होता है, लेकिन मुझे क्या जनरली ये सब चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। एन आर टी डिवाइड बाय पी लिख दिया मैंने वॉल्यूम की जगह। सो दिस विल बिकम टी इंटू टी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू पी टू द पावर 1 माइनस गामा is equal to constant prime, and you can get this will be t to the power gamma। हम लोग एक काम करते हैं, t p to the power 1 minus gamma डिवाइड बाय गामा इसको लिख लेते हैं। दिस इज अनदर कांस्टेंट c प्राइम। तो अपनी जो इक्वेशन है ना वो इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसका इस्तेमाल करूँगा, टी पी टू द पावर 1 माइनस गामा बाई गामा, ठीक है। तो टी p to the power t high p to the power 1 minus gamma divided by gamma is equal to t low. It is given that pressure is reduced to half in second situation to the power 1 minus gamma divided by gamma. Now you can calculate t low divided by t high, which is equal to 2 to the power 1 minus gamma divided by gamma. This is 2 to the power 1 minus gamma divided by gamma. So if you want to calculate efficiency in this situation, it will be 1 minus 2 to the power 1 minus 5 by 3 divided by 5 by 3. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए. दिस विल बी 1 माइनस, देखो बच्चों ये हो जाएगा -2, यस -2 डिवाइड बाय 5. अब इसका आंसर इरोडो ने तो निकाल के दे रखा है 0.18, लेकिन अपने लिए ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. एंड यू नो एग्जामिनर्स आर वेरी स्मार्ट. अगर उनको आपसे क्वेश्चन पूछना होता है तो वो आपसे पूछ लेते हैं, उनको पता होता है कि कैसे बच्चे से पूछा जाए. फाइनल आंसर ये होगा, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी इस पे रहेगी. और दे कैन फॉर्म इंटीजर क्वेश्चन ओनली, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन तो इसके कर लिए. अब मैं तीसरे पे चलता हूँ. थोड़ा सा टफ है, नहीं तीसरा लल्लू है. अ हीट इंजन, ये ऑलरेडी जेई मेंस में पूछा जा चुका है तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का. अ हीट इंजन एम्प्लॉइंग अ कार्नोट साइकिल with an efficiency neta is equal to 10% in as a refrigerating machine. Now it is used as a refrigerating machine. एक्चुअली वो जो है ना बच्चों, वो तो इंजन था, उसकी एफिशिएंसी 10% थी, बट अब उसको क्या रिवर्स चला रहे हैं. रिवर्स मतलब इट इज़ यूज लाइक रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट लेता है लो टेम्परेचर से, रिलीजेस टू हाई टेम्परेचर. ओके, सो देखते हैं क्या होता है. कौन सा क्वेश्चन था ये तो देख लें एक बार. 2.115 है ये. ओके, जुड़ गया यार. न्यू पेज बस करें. कर लो बात. इसमें नया पेज जुड़ने को तैयार ही नहीं है. कोई बात नहीं, नया पेज अगर जुड़ने को तैयार नहीं है तो हम लोग यहीं लिख देते हैं 2.115. क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, इतनी सी जगह में हो जाएगा अपना काम. I'll check the software. Yes, so it is given that efficiency of a Carnot engine is 10%, which means it is 1 by 10, which is 1 minus मेरा target T low divided by T high. So from here I can calculate T low divided by T high, which is 9 by 10. ओके, COP क्या होती है रेफ्रिजरेटर की? थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ. रेफ्रिजरेटर क्या करता है? लो टेम्परेचर से एनर्जी उठाता है, हाई टेम्परेचर को देता है, और उसके लिए वो एनर्जी लेता है आपसे, वर्क करवाता है. वो हमारे घरों में वर्क कहाँ से आता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी से. हाई टेम्परेचर पे Q2 एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ से Q1 एनर्जी पिक करता है. एंड COP इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. जनरली बच्चे COP भूल जाते हैं. पहली बात तो COP का फुल फॉर्म सुनिए आप. COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हाउ मच हीट इज पिक्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर पर यूनिट वर्क डन बाय एक्सटर्नल. यानी कि 1 जूल एनर्जी इसके अंदर भेजने से ये कितने जूल एनर्जी यहाँ से पिक करता है. जितने ज़्यादा जूल एनर्जी पिक करेगा उतना अच्छा होगा. जैसे 1 जूल एक्सटर्नल एनर्जी देने पर अगर 10 जूल पिक करता है तो ऊपर 11 जूल रिलीज करेगा, लेकिन इसकी COP कहलाएगी 10/1. सो COP इज Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1. ओके, अब देखो बच्चों, अगर ये कार्नो इंजन बेस्ड है, कार्नो इंजन में क्या होता है, जो हीट लेना या देना है,
अगर वो देखा जाए तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो इसको अपन लोग सीधा लिख सकते हैं nRT लो ln V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं nRT हाई ln फलाना ठिकाना, इसको भी वही लिख सकते हैं। कार्नो इंजन पे बेस्ड अगर ये है तो ये जो हीट है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सोर्स पे दी जाने वाली हीट वहाँ के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो सेम रेशो में है। सो दिस विल बी टी हाई डिवाइडेड बाय टी लो minus 1. We already have T high by T low with us, so if I replace 9 by 10 here, T high by T low तो 10 by 9 होगा ना यार, 10 by 9 रिप्लेस करता हूँ तो इसकी COP आती है 9। अब आप सबको ये दिमाग लगाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ COP9। ये जो COP9 आई है इसका मतलब क्या है? 9 मीन्स व्हाट? थिंक। 9 का मतलब है कि जब आपके घर से ये रेफ्रिजरेटर जो कि रिवर्स कार्नो इंजन पे बेस्ड है 1 जूल एनर्जी लेता है आपके घर से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब 1 जूल एनर्जी लेता है, तो ये जो वर्क करता है ना बच्चों, वो वर्क होता है मतलब सॉरी, ये जो हीट पिक करता है ना लो टेम्परेचर से, वो होती है 9 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 9 जूल्स पिक करेगा। 9 जूल पिक करके वहाँ कितना छोड़ेगा बाहर एटमॉस्फेयर में? ये छोड़ेगा 9 + 1 10। यानी कि आपसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आई हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आई डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे इन टच, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, स्प्रेड करते रहिए अपनी नॉलेज को। गुड लक, थैंक यू।